Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. My name is Ankita and I'm so sorry for not being active on this channel for last week. But here I am again with all the informative content for you. So today's video is going to be about admission process in United States for different courses. जो भी मैंने last videos में courses बताए थे, accounting, finance, taxation. So I'm specifically targeting commerce students. और बहुत सारे questions आ रहे थे. Ma'am, can you please explain? We have watched your video about your first job in United States. Then what are the opportunities in US? Then which courses are available for commerce students, but because there is lot of content for science students, but बहुत कम videos है जो commerce के लिए है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही थी. तो कुछ क्वेश्चंस थे कि मैम आप थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ. तो चलो एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले अगर आपको यूएस में पढ़ाई करने के लिए आना है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू योर मास्टर्स इन यूएस, जो किसी भी एरिया में हो सकता है, you have to really plan that well in advance. So basically it is not like जैसे हम इंडिया में देखते हैं, अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यू कैन मे बी टेक एडमिशन इन 1 or 2 months, या जो भी कट ऑफ डेट्स होते हैं उस टाइम पे आप अप्लाई करते हो. बट यहाँ पे जो भी एडमिशन की प्रोसेस है वो 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है. यस, आपने सही सुना. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ़ यू आर टारगेटिंग 25 fall, then you have to start your admission process before 1 year. इतना क्या होता है वो 1 year में? So there are lot of things that you will have to prepare. First of all, आपके transcripts सारे ready होने चाहिए. So mark sheets are different and transcripts are different. I hope you know that. Transcripts, if you are graduate, if you are just BCom, तो आपके BCom के transcripts. If you are a chartered accountant, तो ICI भी आपको transcripts provide करता है. और चलो मान लेते हैं कि आपका CA कंप्लीट नहीं हुआ है, या आप CA स्टूडेंट हो भी नहीं, बट आपने BCom और MCom किया है. बिकॉज US में यूजुअली 12+4 एजुकेशन ज़रूरी होता है. 12+4 जो हमारे BCom स्टूडेंट्स का नहीं होता है, बिकॉज हमारा BCom है वो 3 years का होता है. तो आई सजेस्ट everyone, I really advise everyone to please do your MCom as well, even if you are doing CA, because lot of universities will consider your MCom and not CA. ऐसा हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में. मैंने पर्सनली MCom नहीं किया था, बट इसीलिए मैंने यही यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जो मेरे CA को उन्होंने कंसिडर किया. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया. ट्रांसक्रिप्ट्स आपको आपके रेडी रखने होंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी होने के बाद आपको 2 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा. वन इज़ GRE एंड सेकेंड इज TOEFL और IELTS. तो ये 2 एग्जाम्स में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो लेट मी टेल यू अबाउट GRE. बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ GRE को वेव कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वो भी अभी वेव कर रही होगी, बट यू विल हैव टू चेक दैट. हाउ कैन यू चेक? जस्ट विजिट देयर वेबसाइट, और वेबसाइट पे क्लियरली लिखा होगा कौन से कोर्स के लिए GRE इज़ मैंडेटरी एंड फॉर विच कोर्स इट इज़ ऑप्शनल. Even if you have some work experience, for example, आपका after CA या after your MCom you were working with some company for 3-4 years, then also your GRE can be waived. GRE ऑप्शनल हो सकता है, बट जो TOEFL एग्ज़ाम है वो आपको कंपल्सरी देना होगा, वो कहीं पे भी वेव नहीं होगा. तो ये एग्ज़ाम क्या है? तो इट इज़ बेसिकली योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम. उस एग्ज़ाम में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं. First section is reading section. Reading section is like normal, but it is little difficult, but not really compared to GRE. जहाँ पे passages होंगे और passages के basis पे आपको question answers करने होंगे. Next will be your listening section, where you will listen some lecture or maybe some conversation between 2 people, and you have to answer questions based on that. That is listening section. Then one section is speaking. You will get one topic और उस पर आपको बात करना है, और सिमिलरली आपको कुछ ऑडियो सुनाई देगा और उसको फिर आपको समराइज करके बताना होगा. एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग सेक्शन. देन लास्ट सेक्शन विल बी योर राइटिंग सेक्शन, वेयर यू विल गेट 2 essays, और वो essays आपको लिखने होंगे. ये सारी जो एग्जाम्स होती है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होती है. सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक अलग से कट ऑफ होता है कि आपको GRE में, या फिर आपको GRE अगर वेव है तो आपको TOEFL में मिनिमम क्या स्कोर करना पड़ेगा, तो उतना आप फिर TOEFL में स्कोर कर सकते हो. बट लेट मी टेल यू, TOEFL इज़ नॉट रियली डिफिकल्ट, सो यू कैन ईजीली स्कोर गुड मार्क्स इन इट विथ मे बी 20-25 days ऑफ प्रिपरेशन. और जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर अच्छा है, जिनका इंग्लिश अच्छा है, उनके लिए तो आई थिंक 1 week इज़ मोर देन इनफ to prepare this exam and to score very good marks in this exam.
सो दैट वाज अबाउट एग्जाम्स. देन व्हाट एल्स डू यू नीड? मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में बताया. आई टोल्ड यू अबाउट एग्जाम्स. अदर देन दिस यू नीड SOP. व्हाट इज SOP? इट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो आपको 2 एसेज लिखने पड़ते हैं जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि अभी आप करियर में क्या चाहते हो. वाई आर यू प्लानिंग टू डू मास्टर्स इन US? देन वाई दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? व्हाट इज योर प्लान? व्हाट आर योर करियर गोल्स? Basically, you have to convince them how you are good candidate for that university and how that university is dream university for you. So that is your statement of purpose. Other than that, you also need letter of recommendation. Now, what is it? तो letter of recommendation मैम कोई दूसरा पर्सन आपके लिए recommend करता है कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने सिंसियर हो. तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैम कौन देता है? तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इट इज़ अप टू यू कि आप किससे लोगे. यूजुअली एक तो जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो उनसे लिया जाता है, तो एजुकेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है. या अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके लिए ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है. तो यूनिवर्सिटी यूजुअली 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डिमांड करती है. सो 2 कैन बी योर एजुकेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विच कैन बी फ्रॉम प्रिंसिपल और योर टीचर, एंड 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैन बी फ्रॉम योर वर्क अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है. अदरवाइज 2 लेटर्स आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी योग्य. इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होती है ये सारी मेन रिक्वायरमेंट्स हो गई. देन ऑब्वियसली योर रेज्यूमे जो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एज सच, अगर आपने कुछ जॉब या कुछ किया नहीं है तो भी यू कैन फोकस ऑन योर स्किल्स. और ओवरऑल आपका जो रेज्यूमे है, जो आपका प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू गेट एडमिट फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यहाँ पे US में मास्टर्स करना मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. इफ़ आई कंपेयर दिस विद माई CA स्टडीज़ इट इज़ एक्चुअली नथिंग. तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट मुश्किल अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है. बिकॉज अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं करते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती है. आपका जो अच्छी कंपनीज में जो प्लेसमेंट हो सकता है वो लिमिटेड हो जाता है. सैलरी आपका जो सैलरी का बेस पे आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल नीड फॉर योर एडमिशन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक डिटेल वीडियो ऑन दिस. दैट वॉज माई प्राइमरी वीडियो बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली वॉट डू यू नीड. But my main purpose of this video was to prepare you that if you are planning to come here, you have to prepare well in advance. You will need at least 1 year because 1 साल पहले ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. और जो डेडलाइंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप अभी 3 महीने बाद आना चाहो और आज आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हो. तो आपको 1-1.5 साल के प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे एडमिशन मिलता है. So that's it for today. If you have any questions, अगर आपको कोई भी questions है, please let me know in comments below. I'll be happy to answer those. Thank you so much.